Hello everyone, it's Prashant Pandey again. So as time is passing, we are finishing this series of the lectures. So now I am again here with lecture number 8 that talks about event number 8. So as we are seeing that, as we are covering the further lectures, we are finding so many interesting events and so many interesting questions have already been asked on basis of the formulas that are given in those events in the previous IIT and other engineering entrance examination papers and other papers of the CAT, MAT, JET, railway and all those things. So today I am here with the lecture number 8, event number 8, and that talks about the disarrangement. Until that point, whatever we have heard, that is about the arrangement. But this event is a different event from the earlier events and it talks about the disarrangement. Disarrangement means, इसको आप इस तरह से समझो एक एग्जांपल से कि जैसे 3 फ्रेंड्स हैं, 3 friends are there and they are writing letters to their home. There is only one way, obviously. There is only one way that each and every letter of the friends are reaching to their respective homes. For that, there is only one way. मतलब 3 friends हैं, you say their name as the Ram, Rahman and David. Ram, Rahman and David, and they are writing letter to their home. तो कितने ऐसे तरीके होंगे कि उनकी चिट्ठियां उनके घर पे पहुंच जाएं? इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका होगा. लेकिन कितने ऐसी चिट्ठियां होंगे कि किसी की चिट्ठी उसके घर पर ना पहुंच के बाकी कहीं भी पहुंच सकती है लेकिन उसके घर पे नहीं पहुंचना. मतलब इसे कहते हैं डिसअरेंजिंग द थिंग्स. मतलब द थिंग इज रीचिंग एनीवेयर बट नॉट एट दैट एग्जैक्ट प्लेस फॉर विच इट इज डेस्टाइन्ड. वो कहीं भी पहुंच सकती है लेकिन उस जगह नहीं पहुंच सकती है कि जहां वो डेस्टाइन्ड हो. इसका दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे 5 डिफरेंट तरह की बॉल्स हैं, 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं. यू कैन चूज कलर्स इन योर ओन डिजायर. जैसे रेड चूज कर सकते हो, व्हाइट चूज कर सकते हो, ब्लू चूज कर सकते हो, ग्रीन चूज कर सकते हो, ऑरेंज चूज कर सकते हो. अब ये 5 डिफरेंट कलर के बैग भी हैं इन सारे कलर्स के, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज एंड ऑल मींस जिस कलर की बॉल है उसी कलर के बैग. अब इसका तो एक ही तरीका होगा कि कोई भी बॉल अपने कलर के बैग में चली जाए. लेकिन इसके कितने तरीके होंगे जब ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल इन विच ईच बॉल इज गोइंग ए यूनिक बॉक्स बट नॉट इट्स ऑफ ओन कलर. मतलब कि जितने एक बॉल यूनिक बॉक्स में तो जा रही है लेकिन उस बॉक्स का वो कलर नहीं है जो बॉल का कलर है. चिट्ठियां पहुंच तो रही हैं लोगों की लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच रही है कि जो जिस जगह पे वो डेस्टाइन्ड थी. तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे इवेंट को हम लोग डील करते हैं. डिसअरेंजमेंट नाम का एक सब टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में. इन दैट टॉपिक वी डील इट. सो इवेंट 8 इज गोइंग लाइक दैट. इफ n objects are there and they are different obviously and it is destined for n different places, then number of ways that no object would go its fixed place. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी उस फिक्स जगह पर ना जाए. rather than fix you can use destined letter, it would be more precise. No object would go to its destined place like that. So this whole ways would be represented as dn. Means whenever I will say dn, then you will just write it that disarrangement of n objects. If I am writing dr, then you have to write disarrangement of r object. If I am writing dp, then you have to take a meaning out of it, the disarrangement of p object. So how dn? It is dn मतलब n objects है और वो इन डिफरेंट प्लेसेस के लिए डेस्टाइन्ड है. कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अपने डेस्टाइन्ड प्लेस पर ना जाए. उस तरीके को हम लोग dn से रिप्रेजेंट करते हैं. dn मींस होता है फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड अप टू इन दिस वे. अच्छा, now a very common question can arise in the mind of the student that how this has come. So for this you have to just see the means sequence. जब यहां लिखे 2 था तब यहां माइनस आया. जब यहां 3 का फैक्टोरियल था तब यहां प्लस आया. जब यहां 4 का फैक्टोरियल था तो माइनस आया. तो आप इस तरह से कह सकते हो कि 2 का माइनस इस नाते है क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 लग गया. ये इस नाते माइनस आया. जब ये 3 यहां था तो वो प्लस आया, तो इसका मतलब -1 की पावर 3 + 1 तो यहां प्लस आया होगा. और जब यहां 4 था तो -1 की पावर 4 + 1 दैट्स व्हाई अगेन माइनस वुड हैव कम. तो जब यहां n होगा, when factorial n would be there in the denominator, then at this place we will find -1 to the power n + 1.
So it is very simple formula, it is very simple to use also. So that's why this, now we will see the example, any example which is based on it, and there are so many questions which have been asked, means which is just the application of this formula. Just you have to apply this formula. You can find that I think in 2012 in IIT pre-examination they asked just a question, means disarranging of the 5 objects. But at that time their question was in IIT first paper, this question was that 5 balls are there of different color. Find the number of ways in which no balls is going to the box of its own color. So I am writing the example that is based on this one. So it is like that. That example means there are 5 balls. There are 5 balls of different colors. Find number of ways so that no ball would go in box of its own color. Means 5 box of its own color. 5 balls are there, 5 boxes are there, but no ball is going in the box of its own color. So that you have to find. For that we have to disarrange 5 things. So if we have to disarrange 5 things, then what application we will do? D5, and it will be equal to factorial 5 minus factorial 5, 1 minus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 minus 1 by factorial 4 plus 1 by factorial 5, like that. In this way, 120 minus 120, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 6 minus 1 by 24 plus 1 by 120. And this way, if you are taking LCM of this expression, like that, I am doing this calculation here, D5, means what thing we have to do? 120 minus, I am taking LCM 120, and what I will be getting? 120 minus 60 plus 20 minus 5 plus 1. Like this, it would be 120 would be cancelled off from 120 minus, it would be 60, 80 minus 5, 75 plus 76, and answer would be 44. So this is the answer. That was the answer there. So it is very easy to apply. Just you have to think that how many objects you have to disarrange. So if you have to disarrange all the objects, 5 objects, then formula would be applied under D5. Now we will see the corollary of these events. मतलब इस events का और जो use कर सकते हैं वो कहाँ use कर सकते हैं, that we will see. Okay. After having idea about the DN, just we see the things. What are the what can be the further application of these events, and how the question can be asked on the basis of this event by using this formula. So I am just taking this event in a very generous way, that what possible ways that can explore from these events. So I am taking a case that was earlier. If n objects are there fixed for n different places, n object है और n different places के लिए fix है, given each object may go at one place. एक आपको पता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर जाएंगे. आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब 10 पर्सन है, ऐसा आप बोल सकते हो, और 10 पर्सन है और उनके लिए 10 चेयर्स अलॉट है कि आप इसी चेयर पे बैठोगे, आप इसी चेयर पे बैठे, पर्सन इधर बैठे हैं और उनके साथ उनकी जो चेयर्स है वो भी अलॉट है. अब कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं. सी we are given with the formulas and all those things, but beauty of our mind would be that we will explore the possibility that in how many ways that those formulas would be utilized in the questions. कैसे कैसे क्वेश्चन आने सकते हैं, ये हमको अपने दिमाग में सोचना है. तो क्या क्या हो सकता है देखने की कोशिश करते हैं सब लोग, कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट n डिफरेंट प्लेसेस के लिए डेस्टाइंड है, और क्या हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n ऑब्जेक्ट्स, मतलब उन n ऑब्जेक्ट्स को उन n प्लेसेस पे बैठाने का टोटल नंबर ऑफ तरीका क्या होगा, वो पहले से हम लोग जान रहे हैं, फैक्टोरियल n होगा, दैट इज npn.
इन डिफरेंट प्लेसेस को, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बैठाना है, कोई कंडीशन, नो कंडीशन इज गिवन, दैट वुड बी फैक्टोरियल। आपसे कहा जाए कि 5 पर्सन है और देयर आर 5 चेयर्स, तो पहले चेयर पे आपको बैठाना है, नो कंडीशन इज गिवन, पहले चेयर को भरने के लिए यू आर हैविंग 5 ऑप्शन, दूसरे चेयर के लिए 4, तीसरे के लिए 3, फिर 2, फिर 1 इन दिस वे बाय अप्लाइंग एंड थ्योरम 5 into 4 into 3 into t1 means that we have seen earlier. So ये तो आप जानते ही होंगे फैक्टोरियल। सेकंड, आई एम कमिंग ऑन सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट ईच ऑब्जेक्ट वुड गो टू राइट प्लेस। कितने ऐसे तरीके होंगे कि हर ऑब्जेक्ट कहां जाए, सही जगह पर जाए, राइट प्लेस पर जाए। तो इसके कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे, 1। सिर्फ एक ही ऐसा तरीका होगा कि हर चीज अपनी सही पर जगह पर जाए। 5 पर्सन है, 5 चेयर्स है, पहला आदमी चेयर पे जाए एक तरीके से, दूसरा अपनी चेयर पे एक तरीके से, तीसरा एक तरीके से, चौथा पांचवा एक तरीके से। अच्छा, इन फैक्टोरियल एन में सिर्फ एक तरीका वो है कि जिसमें हर आदमी अपनी जगह पर जाए। अच्छा, इस एक तरीके के अलावा जो बाकी होंगे फैक्टोरियल में वो क्या होंगे, दैट यू ट्राई टू थिंक। 5 पर्सन को 5 चेयर पर बैठाना था, फैक्टोरियल 5 120 तरीके थे। एक तरीका वो था कि जिसमें पर्सन अपनी चेयर पे जा रहा। यू जस्ट एज्यूम that 5 person are there, P1, P2, P3, P4, P5, P4, P5. इनके लिए चेयर्स भी अलॉटेड है, C1, C2, C3, C4, C5. So there is only one way कि कोई आदमी अपनी अपनी चेयर पे चला जाए, इसका सिर्फ एक तरीका। लेकिन टोटल तो 120 तरीके हैं बैठाने के बिना किसी कंडीशन के। तो जो रेस्ट 119 तरीके होंगे उसमें क्या होगा, उसमें जरूर से जरूर एक आदमी गलत चेयर पे बैठ गया होगा। उन सारे तरीके में जरूर से जरूर एटलीस्ट 1 पर्सन वुड हैव अडॉप्टेड रॉन्ग प्लेस। ये थर्ड इवेंट बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज दैट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट वुड गो टू द रॉन्ग प्लेस। तो ये फैक्टोरियल एन, टोटल नंबर ऑफ वेज एंड 1 वुड गेट सबट्रैक्टेड फ्रॉम फैक्टोरियल एन। इन दिस वे यू विल गेट फैक्टोरियल एन -1। So factorial n -1 is the total number of ways in which at least one object has chosen wrong place. At least. Total number of ways that each object is going to the wrong place means see, this event is talking about at least one object has gone on the wrong place, and this is talking about that each and every possible event is going to the wrong place that we had talked in that event number 8. Means in the starting of the event number 8, only that thing I have talked, that is Dn. Now I am writing the application of that event. It is Dn means number of disarrangement. Whenever anyone is saying Dn, that you have to consider that what Dn stand by for what, factorial n minus factorial n, 1 minus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3, like that -1 to the power n plus 1, 1 by factorial n, in this way. Dn. Again I am repeating it. Suppose someone is asking that D7, so at the place of the n you just have to put 7. So in this way you will find D7. D5, at the place of n you have to put 5. In this example I had taken example of 5 in which answer of 44 was coming. That question which was asked in 2011. Now total number of ways that at least one object would go to the right place. आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट सही जगह पे गया होगा, उसका क्या तरीका होगा। तो अभी आपको जैसे मालूम है कि 5 पर्सन है, 5 पर्सन को 5 चेयर पे बैठाने का तरीका 120। उस 120 तरीके में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए थे बॉल्स और बैग के लिए, 5 के साथ ही किए थे, 44 आंसर आया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 44 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी पर्सन अपनी चेयर पे नहीं बैठ रहा, मतलब P1 C1 छोड़ के कहीं भी बैठ रहा है, P2 C2 छोड़ के कहीं भी बैठ रहा है, इसी तरीके से P4 P5 भी, ये सारे भी अपनी छोड़ के कहीं भी बैठ रहे हैं। ऐसे 44 तरीके हैं। उन 44 तरीके को आप 120 में से एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब जो रेस्ट 76 होंगे उसमें क्या होंगे, उसमें कम से कम एक आदमी सही जगह में बैठ रहा होगा, तो फैक्टोरियल एन माइनस Dn की वैल्यू होगी। मतलब कोई आपसे कहे, आसानी की भाषा में आपको बताता हूं हिंदी में, कि 5 चेयर हैं, 5 पर्सन है और उनके लिए 5 चेयर्स है। कोई पूछे कितने तरीके से बैठा सकते हो, क्या जवाब देंगे, फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। कोई बोले कितने तरीके से बैठा सकते हो कि हर आदमी अपनी चेयर पे बैठ जाए, तो बोलेंगे 1। कितने तरीके से बैठा सकते हो कि कम से कम एक आदमी गलत जगह पे बैठे, तो बोलेंगे 120 -1, क्योंकि सारे सही जगह पे बैठने का एक तरीका, टोटल बैठने का 120 तरीका, उसमें से घटाएंगे तो कम से कम एक आदमी अपनी गलत जगह में बैठेगा। कोई बोलेंगे कितने तरीके से बैठा सकते हो कि सारी के सारे गलत जगह पे बैठे, D5 मीन्स 76।
कोई बोले कितने तरीके से बैठा सकते हो कि कम से कम एक आदमी सही जगह पर बैठे, तो 44 तो आया है D5, 44 आया है D5। और कितने तरीके से बैठा सकते हैं कि कम से कम एक आदमी सही जगह पे बैठा है, तो आप 120 में से सिंपली 44 को हटा दो और जो 76 आएगा उसमें कम से कम एक आदमी सही जगह पर बैठेगा। तो ये बड़ा सिंपल है और इस पे क्वेश्चंस भी जो है कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दैट यू कैन आंसर। अब इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है, वो चीज हम लोगों को सीखना है कि जैसे उसमें ऐसा इस क्वेश्चन में पूछेगा, इसको थोड़ा सा हम भी इस पे एग्जांपल्स भी ले चुके हैं, इसको अच्छे से हम एलेबोरेट भी कर चुके हैं इजी वर्ड्स में। सो अब हम लोग एक दूसरा तरीका इसमें करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसपे और क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आप लोगों को सीखना बहुत आसानी की भाषा में आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी सब बहुत सिंपल है और बड़ा फुल लेंथ में है। आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ द हरी, सो इफ यू आर हैविंग फुल टाइम, व्हेन यू आर हैविंग टाइम देन ओनली यू वॉच द वीडियो। इट्स नॉट लाइक दैट जैसे और यूट्यूब का वीडियो एंटरटेनमेंट का तो भाई कोई चैनल है नहीं, तो जब आपको ये लग रहा है कि आपके पास आराम से आप पढ़ो, एक दिन बाद पढ़ो, लेकिन जो आपको लगता है कि नहीं 1 घंटा 2 घंटा है, शाम का समय हो और सारे चैनल फिर नहीं चलाओ उस समय, ये नहीं कि उसी बीच में गाना भी सुन रहे हैं, मैथमेटिक्स है, गाना सुनने से नहीं आएगा। ये नहीं कि आप वीडियो भी देख रहे हो तो उसी में मम्मी बुला रही है, उसी में पापा बुला रहे हैं, उसी में किसी फोन से बात कर रहे हो, ये सब करके नहीं पढ़ाई होती। पढ़ाई को मिशन की तरह करना चाहिए। जब आपके पास लगे कि नाउ यू आर इन मोड ऑफ स्टडी, देन कट ऑफ फ्रॉम ऑल द अदर अफेयर्स, तब वीडियो लीजिए, आराम से एक हाथ में कॉपी पेन रखिए और जो जो बोला जाए उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ग्रेजुअली यू आर गेटिंग एक्सपर्टाइज इन दीज अफेयर्स लाइक अस। तब आपको क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा और आपको धीरे धीरे, मैंने अभी बता रहा हूं कि आफ्टर अपलोडिंग 3 more वीडियोज यू विल हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। सो अभी हम लोग इसमें एक और इवेंट ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच are particular object, mind the language, are particular object are going at wrong place, are going at wrong place, at wrong place, wrong place, and rest n minus r objects are going at right place, are going at right place, right place. So that thing, total number of ways in which r particular object are going at a wrong place and rest n minus r objects are going at a right place. तो यहां क्या कहा जा रहा है कि 5 पर्सन का एग्जांपल फिर से लेते हैं, 5 चेयर्स है। अब कहा जा रहा है आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें से मान लो कि 3 आदमी की बात करना है, 3 पर्सन का आपको बात करना है, लेकिन वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन में वो इंडिकेटेड होने चाहिए कि हाँ P2 P3 P4 ये लोग अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, बाकी लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 2 काम, यहां 2 वर्क हो रहा है एंड फॉर्म में। एक तो ये आर पर्टिकुलर जो लोग हैं ये अपनी जगह पर नहीं बैठ रहे हैं और एन माइनस आर लोग अपनी जगह पर बैठ रहे हैं, लेकिन आर को आपको खोजने का काम नहीं करना है, मतलब you have to do only 2 work, means you have to make sit n minus r given person at their places itself, that can be done by only one way आपको, and you have to make sit r person not at those place, not at those concerned place, मतलब n person are there, r आदमी को आपको उनकी जगह पर नहीं बैठने देना और n माइनस आपको बैठने देना है, लेकिन इसकी ब्यूटी को आप समझने की कोशिश करो। यहां आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये कहा जाएगा कि ये ऐसे कहा जाएगा कि जैसे 5 आदमी की बात की जाएगी कि A B C D E ये 5 लोग हैं और इनके लिए चेयर अलॉटेड है। एक क्वेश्चन का मैं आपको वो बता रहा हूं तरीका, और एक आ जाएगा कि इसमें से B C D अपनी जगह पर नहीं बैठ रहा। When this is well instructed कि whom person are not going to, whose person are not going to sit at their respective places, तब ये पर्टिकुलर वाला वर्ड मटेरियलाइज होगा, तब ये मीनिंगफुल होगा। और ऐसे केस में हम लोगों को 2 काम करना है
कि इनको नहीं बैठने देना है, जिसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, आर लोगों को डिसअरेंज करना है, और n माइनस आर लोगों को बैठने का एक ही तरीका होता है, तो उसका तरीका होगा 1। तो ये होगा फैक्टोरियल आर माइनस 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3, in this way -1 की पावर r plus 1 upon 1 by factorial r, in this way. Now अब अगर जो आपको दूसरा तरीके से क्वेश्चन, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि आपको कहा जाएगा कि ये P1, P2, P3, P4, P5 are 5%. P2, P3, P4 is not going to sit at their respective places and the other person would sit at their respective places. तो इसके लिए आपको तरीका निकालना पड़ेगा। अगर आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाए कि P2, P3, P4 नहीं बैठेंगे तो मतलब D3, और ये बैठेंगे तो मतलब 1, और D3 माने फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1/2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3। आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6, ये 6, और 6 माइनस 3 प्लस 1 4, और टोटल 2। दो तरीके आएंगे इसका। लेकिन अभी क्या बात होगी, अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होने सकता है, ये सब इसी इवेंट से निकल रहे हैं। जब ये इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए क्वेश्चन में, और आर पर्टिकुलर से कहा दिया जाए एनी और ऑब्जेक्ट, ट्राई टू सी how making just a slight turn in the language is making a very vast difference on the answer. Here it is instructed that any R object are not going to place at their respective place, and rest and minus R object is going to right place. अब यहां आपको पिछले वाले में R particular object था, तो आपको you had to perform only 2 job. Means just you had to make sit R person not on the respective seat, and n minus R person only had to sit on the respective seats. यहां हमको 3 काम करना है, यहां 2 काम नहीं करना है। यहां पहले R person को खोजने का भी एक काम कि पहले एनी R person, तो पहले उन R person को खोजेंगे, फिर उनको जब एक कोई खोज के लाएंगे तब उसके क्या करेंगे, गलत जगह पे बैठाएंगे, और n माइनस R को सही जगह में बैठाएंगे। अब जैसे मान लो वहां आपको मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से अभी आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि P1, P2, P3, P4, P5 5 लोग हैं, और इन 5 पर्सन में आपको कहा जा रहा है कि एनी 3 पर्सन आर नॉट सिटिंग एट रिस्पेक्टिव प्लेस, एंड रेस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग एट फिक्स प्लेस, मीन्स एट डेस्टाइन्ड प्लेस। कोई भी 3, अब जैसे उसने एनी 3 बोला, जब वो बोलता था कि P2, P3, P4 अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, तो we had not to bother about that who is not going to sit at the right place. Means it was well given to us कि P2, P3, P4 ही वो लोग हैं, वो साथी हैं कि जो अपनी जगह पे नहीं बैठने जा रहे हैं। लेकिन यहां तो करा एनी 3 पर्सन, तो फर्स्ट यू हैव टू सर्च एनी 3। Now you know if you have to think about the 3 person, means combination of 3 person out of 5 person, how many ways we are having? 5C3 means it would come 10। तो ये तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जरा चलो करके देखते हैं, आपको मजा आएगा। कौन कौन 3 पर्सन नहीं बैठ सकते हैं सोचिए। एक तरीका तो हो सकता है कि P1, P2, P3 ना बैठे अपनी जगह पर। एक तरीका हो सकता है कि P1, P2, P4 ना बैठे अपनी जगह पर। एक तरीका ये हो सकता है कि P1, P2, P5 ना बैठे अपनी जगह पर। और कौन तरीका हो सकता है, P1, P3, P4 ना बैठे अपनी जगह पर। और कौन तरीका हो सकता है, P1, P3, P5 में बैठा अपनी जगह पर। और कौन तरीका हो सकता है सोचिए, P2, P3, P4 में बैठा अपनी जगह पर। P2, P3, P5 में बैठा अपनी जगह पर। और कौन तरीका हो सकता है, P2, P4, P5 में बैठा अपनी जगह पर। और कौन तरीका हो सकता है, P1, P4, P5 न बैठा अपनी जगह पर। इसी तरीके से और कौन सा तरीका हो सकता है, P1, P2, P5, then P3, P4, P5, P3, P4, P5 in this way. So we are seeing that
इन दिस पे ऑल 10 वेज ये नहीं बैठेंगे तो ये कैसे बैठेगा? यहाँ कौन कौन फिर बैठेगा अपनी जगह पर? P4 P5। यहां अगर ये बैठ जाएंगे तो कौन अपनी जगह पर बैठेगा? यहाँ बैठेगा P3 P5। तो ये लोग सही जगह पर अपनी जगह बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे। पिछली बार में कौन सा कहा कि P2 P3 P4, उस क्वेश्चन में आर पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन में आपसे जैसे कहा कि P2 P3 P4 अपनी जगह पर नहीं बैठ रहे हैं और P1 P5 बैठ रहे हैं, तो ये सही बैठ रहा है और ये नहीं बैठ रहा है अपनी जगह पर। तो पिछले वाला क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट हो जाएगा। जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा वैसा समझिए इसमें 10 क्वेश्चन हैं। यहां कर तो क्या रहे हैं हम लोग? पहले काम कर रहे हैं कि कितने तरीके से आप खोजने सकते हैं आर पर्सन को। तो पहला वर्क है एनसीआर तरीके से, दैट वुड गेट एग्जीक्यूटेड। एंड दूसरा क्या काम करना है? जब एक भी को ये एनसीआर तरीके से, आप सोचिए आप इसको ये इवेंट खाली आपको करना होता तो आप इसको अपनी तरह कैसे नहीं बैठा सकते अपनी जगह पर? D3 मीन्स 2, D3 मीन्स लाइक दैट DN, जैसे DN चलता है वैसे D3 में इनकी जगह पर 3, और इसको बैठाने का एक तरीका। वैसे ही ऐसा इसके लिए, ऐसा इसके लिए, ऐसा इसके लिए। तो इसका तरीका अगर आपसे पूछा जाए कि 5 persons are to be sit on 5 different stand chairs and out of which there are how many ways in which any 3 person is not sitting on the respective places, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5C3 into D3 into 1। यहां का आंसर हो जाएगा NCR into DR into 1, like this, NCR into DR into 1 in this way. You are taking one example in order to make you consider this event, and means one part this example was earlier asked in the JEE. Example is like that, means A and B are two given sets, 4 elements each, and then find in how many ways functions are possible, means that is the problem of the calculus। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीके के फंक्शन पॉसिबल होंगे। दूसरा पूछा जा रहा है कि 1 फंक्शन आर पॉसिबल, और तीसरा पूछा जा रहा है कि 1 फंक्शन इन विच FAI इज नॉट BI, मीन्स A1 B1 से ना अटैच हो, A2 B2 से ना हो, इसी तरीके से A3 B3 से ना हो, A4 B4 से ना हो। 1 फंक्शन इन विच एटलीस्ट 1 AI इज सच दैट FAI इज इक्वल टू BI। कितने 1 फंक्शन होंगे इसमें जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 AI इज सच दैट फॉर विच FAI इज इक्वल टू BI। देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे? तो ये प्रॉब्ली ईच एंड एवरीवन ऑफ अस इज नोइंग दैट हाउ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन होता है कि जिसमें इन सारे लोगों को अपना आउटपुट इधर मिल जाए। इफ A to B फंक्शन है अगर जो इस तरह से F such that A to B, तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट को B में आउटपुट मिल जाए। फंक्शन में ये माने नहीं रखता कि सबको अलग अलग ही आउटपुट मिल जाए, मतलब सारे के सारे एक ही जगह पर भी जा सकते हैं। तो फंक्शन में आपको समहाउ सबको आपको आउटपुट देना होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, इसके लिए फिर 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि जो ऑप्शन इसने कंसीडर किया वो ऑप्शन ये भी कर ले सकता है फंक्शन में। Until unless nature of the function is not defined 1 1 on 2 इस तरह से, तब तक आपके पास कोई बंदिश नहीं है, आप कैसे भी करने सकते हो। तो फॉर प्लेसिंग A1 you are having 4 ऑप्शन, similar way for placing A2 A3 A4 each, for each one of them you are having 4 ऑप्शन। In this way total number of function is 4 to the power 4, means it is like that 4 squares 16, then 64, then 256. So answer of the first section would be 256. And the second, 1 function are possible. When we talk about the 1 function, 1 function means they need to have unique output. So for this, if A1 has to place, A1 can be placed in 4 ways, then for A2 you are having 3 ways, and for A3 you are having 2 ways, for A4 you are having 1 way. In this way 4 into 3 into 2 into 1, and this way 24. 1 function in which at least 1 function in which FAI is not BI. So it is the case of the disarrangement. One is this was asked in the earlier year. Answer third. It is the case of disarrangement. It is asking about कितने 1 फंक्शन ऐसे हो सकते हैं, मतलब सब अलग अलग जगह पर जा रहे हैं लेकिन कोई अपने में नहीं जा रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आंसर 3 यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। आंसर थर्ड यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका तरीका होगा D4, एंड D4 मीन्स फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4
1 minus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 and similarly 1 by factorial 4. Like this, it is 24 minus 24. 1 minus 1 by 2 plus 1 by 6 minus 1 by 24, and this way 24 minus 24. Your calculation must be very much strong. It is 24 minus 12, 12, 12, 4, 16, 16 minus 1, 15, 15 by 24. In this way, your answer would be 9. 24 minus 15, 24 minus 15, your answer would be 9. So it would be the answer of third. And what fourth question is saying? So function should be 1, 1, but in which at least one AI is such that FAI is equal to BI. कम से कम एक चीज सही जगह पे जा रही है. तो हमने निकाला है कि टोटल 24 ऑनन फंक्शन बचेंगे. टोटल कितने बचेंगे? 24. 24 में 9 वो तरीके हैं जिसमें कोई भी सही जगह नहीं जा रहा. 24 में 9 वो तरीके हैं जिसमें कोई भी सही जगह नहीं जा रहा. तो बचे जो 15 होंगे वो कैसे होंगे? उसमें कम से कम एक कोई सही जगह पे जा रहा होगा. ऐसे आप समझ लो, सिंपल सी बात है. There are 24 such unknown functions, in out of which 9 functions, unknown functions are in such a means are maintaining such a property that no AI is going to BI. No 9 तो ये हो गए. तो जो बचे उन 24 में से उन 9 वेज भगा दोगे तो आपके पास जो रेस्ट 15 वेज यू विल बी हैविंग, उन 15 में क्या होगा? वो एटलीस्ट वन AI must be going to the BI. Hence, the answer of the fourth one would be only 9. As I have earlier said so many times, that means it is factorial n minus factorial 4 minus d4, and it would be 24 minus 9 means answer would be 15. Sorry, 15. And I have said so many times to you that in permutation combination you just have to correlate the language of the question with the concerned event. Once you are getting that from which events this question has got originated, means answer of the questions is not lengthy. Means see here question is written from here to here, and you are getting answer only in one line. You just what you have to do? You have to apply your mind. You have to correlate the language of the question from the given elaborated events. So you try to make good notes of the events and try to go through the events very thoroughly. Once you are getting that from this event, it has got originated from this event, then answer of the question would be very simple and sweet also. So in this way, event number 8 I am completing, and I am coming on the next event. So before coming to the event number 9, we need to have idea about one more thing, that is about the greatest integer of x. One of you might have heard about this name, and if you have not heard, then I am describing it. It is very simple. It is very easy to obtain. I am just writing a formula. Just go through that, and you will find that it is very simple. Means greatest integer is a mathematical operator. Just listen the things. I am just describing it in one minute. Greatest integer is just a mathematical operator. It is shown by this open close bracket sign. And it is applied only on the numbers, means 5.5, 7.9, like that. Minus 3 point, each and every real number on it may be applied. And how it is evaluated, for which we are having a very simple technique, means just x is a real number. It may be integer, it may not be integer. And you have to evaluate greatest integer of x. Whenever greatest integer sign would be there, this kind of the bracket would be applied on the number. So greatest integer x may be applied like that. If x is integer, suppose x is integer I, then you don't have to do anything. You just have to write greatest integer at the place of greatest integer x I, like that. If someone is saying, I am making this space. If someone is saying greatest integer 3, you are saying that greatest integer has got applied on 3, it would be 3. Greatest integer of minus 5, then it would be minus 5. Greatest integer of 7, then it is 7. Greatest integer of 0, then it is 0. Greatest integer of minus 1, that it is minus 1. Like that. If it is not integer, just left integer of x when it is shown on number line. Means if 3.1, in this case, अगर जो इंटीजर के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाइड है तो आप सीधे इसका आंसर इंटीजर ही लिख दो.
बड़ा आसान, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो इंटीजर नहीं है तो कहा गया जस्ट लेफ्ट इंटीजर ऑफ x when it is shown on number line, it is means yes। अगर जो आप नहीं है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप 3.1 को नंबर लाइन पे लोकेट करो और इसके जस्ट बाएं वाला जो भी इंटीजर मिलेगा वही इसका आंसर होगा। अब आप करके देखो, -3.1 अगर जो हो तो क्या करेंगे, आप -3.1 को ले लो, -3.1 के जस्ट बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में यू आर गेटिंग -4। सपोज यू हैव टू, समवन इज आस्किंग अबाउट -7.6, तो आप -7.6 का लोकेट करो, इसके लेफ्ट में आपको कौन सा मिल रहा है -8, तो आंसर वुड बी -8। एंड इन केस ऑफ 7.6 जस्ट गो ऑन 7.6 एंड 7.6 के लेफ्ट में आपको क्या मिला 7, तो आंसर वुड बी 7। सो इट इज वेरी सिंपल टू इवेल्युएट ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो event 9 goes like that, any factorial n always may be represented, any factorial n always may be represented as factorial n is equal to 2 to the power p1, 3 to the power p2, 5 to the power p3, 7 to the power p5, p to the power pn. Means it is the property of the factorial n that any factorial n always may be represented in the exponents of the prime number just located before that n। किसी भी फैक्टोरियल एन को आप उसके पहले के सारे प्राइम नंबर्स के पावर में ऐसे तोड़ना सकते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर्स, बेसिक पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लगा रहेगा, ये याद रखिएगा। जैसे आपको फिर से आई ट्राई टू एलेबोरेट, सपोज यू हैव टू ब्रेक फैक्टोरियल 11। सो फैक्टोरियल 11 में 11 या उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, उनके डिफरेंट पावर्स में आप उसको तुरंत ब्रेक कर दे सकते हैं थ्रू दिस इवेंट। व्हाट वुड बी दोज पावर्स, वो पावर्स क्या होंगे? P1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द सेम ऑपरेटर अबाउट व्हिच आई डिस्कस्ड जस्ट बिफोर, n/2 स्क्वायर, एंड वी विल कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस until it will become 0, and in this way we will proceed P for P1, P2, P3, Pn also. So this is very important event, and just I am taking one example, I am trying to make you understand for factorial 10. So I am knowing that 10 या उसके पहले कितने प्राइम नंबर आते हैं? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, फिर 8, 9, 10 ये सब कंपोजिट नंबर है। इनके ऊपर पावर लगेगा P1, ये P2, ये P3, ये P4। फॉर द वैल्यू ऑफ P1 व्हाट वी विल डू, 10/2, 10/2 स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि इसकी पूरी वैल्यू घटती जाएगी, एंड व्हेन इट वुड बी अ फ्रैक्शन व्हिच वुड बी लेस देन 1, at that point of time it would become 0, means greatest integer of this thing become 0. 10/2 means 5, and it is means 2.25, and it is 1.125, and it is 10/16 means 5/8. 5/8 is going to just about 0.6. So it is 5, it is 2, it is 1, it is 0, 8. So for P1 we are getting 8, and for P2 10/3, 10/3 square, 10/3 cube, like this. It is 3, it is 1 means 4. For P3 10/5, 10/5 square, and it is 2. In this way, for 7 it would be 1. So now what we are having for factorial 10, we can write factorial 10 like 2 to the power 8, 3 to the power 4, 5 to the power 2, and 7 to the power 1. When we will evaluate this whole fraction, then we are going to have the value of factorial 10. Through this mathematical tool, through this technique, when we can do these things, then we will have, this event has got a very vast application on the things, and there are so many questions that has been asked on this event itself. जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज
एट द लास्ट आप फॉलो फैक्टोरियल, फिर उस तरह से क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, लाइक दैट, sum of all divisors. So these are very good application of this event that we will discuss in the coming lecture. So wait for the lecture number 9. In that lecture I will discuss these things in very much detail, and till then keep on viewing these videos. And one thing I want to make request, as I requested in between the lecture, that whenever you want to learn about the things that are given on our channel, so first prepare your mind and have spare time, and thereafter go through lectures calmly. Once you are viewing some video for getting some kind of the information, until unless you are not investing your time, you will not have any idea about the things, because it is not any kind of the entertainment channel कि आप कुछ भी कर रहे हो और बीच में ऐसे वीडियो देखो तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई हम लोग फिल्मी गाना या कोई डांस का तो कोई सीन रखे नहीं है, तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं. सो इफ यू वांट टू हैव नॉलेज अबाउट द थिंग्स, then subscribe our channel Praxis Vidyapeeth. Go to the videos. There are so many videos on our channel on the physics, chemistry, mathematics, biology, English, on all those topics, and videos will keep on coming in in future also. So subscribe our channel and share and like all the videos, and try to make it reach to your apprentices and friends. Thank you.